कोरोना के मामले एक बार से फिर से बढ़ रहे हैं. These cases are rising 1,15,000 plus. It's a matter of great concern. The government is continuously requesting people to follow COVID appropriate behavior. But what really is the plan? It's very obvious कि ये second surge है. To talk about this, we have the man himself, Dr. Harshvardhan, the Health Minister. Thank you very much, Dr. Harshvardhan. मेरा पहला सवाल है 1.15 लाख से ज्यादा मामले, इतने मामले पहली वेव में भी नहीं हुए थे. मैं अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूं, हाउ मच वरीड शुड वी बी और हाउ मच वरीड इज द गवर्नमेंट? No, definitely it is a cause for worry and concern, and it should be a cause of worry for everyone, people in the society, and of course the government has been worried and concerned about COVID right from the day we heard the news of new coronavirus in the world on 6th of January 2020. So we have been working on it with that high level of concern and commitment at the highest level, starting from the Prime Minister. This is the story of the last 15 months. So we are as much concerned today as we were in fact 1 year back. And right now you see our worry is basically focused on the fact that how to really convince the people once again that COVID appropriate behavior is so important. You see, it's all happening because of the lack of commitment and sincerity on the part of the people, where they are taking everything so casually and in so light manner that nobody is really interested in wearing the mask. If at all they are wearing the mask, they are not wearing it properly, and there is no respect for the norms of physical distancing. There is no respect for maintaining hand hygiene and things like that, and all normal activities have resumed. They should have resumed, but they were supposed to resume with discipline of the COVID times. But everybody has returned back to the normal times, and nobody actually respecting the COVID appropriate behavior. ये तो अब this is unfortunately the reality. अब सवाल ये भी होता है, जैसे आज आपने देखा in the courts, it has been said that even if you are alone in a car, you're supposed to wear a mask, right? That clarity has been given. And then you juxtapose this image with thousands, tens and thousands of people in political rallies, in religious functions, and then you think to yourself that where is the rule? No, I agree with you that you have to actually worry and be concerned about everything. That's a matter of concern for all of us again, and many of these cases, all this surge, you see, this is in fact an outcome of a combination of many factors and many other activities that have happened and are still taking place at multiple locations all over the country for multiple reasons. It's not only about elections, it's so many things, social activities happening, political activities happening, personal activities happening, functions happening, and people not respecting the norms and all that. आपको लगता है इन सब पे कर्ब्स लगाने जरूरी होंगे अगर ये if we have to stop this? बहुत जरूरी है, कर्ब लगाना जरूरी है. और I think पॉलिटिकल फंक्शन में आप कितना लगा पाएंगे, दैट इज समथिंग विच आई मे नॉट बी एबल टू कमेंट और सॉर्ट ऑफ गिव ए डायरेक्शन अबाउट, बिकॉज जो इलेक्शंस हैं वो हम सब जान रहे हैं कि इलेक्शंस तो समय पे होने ज़रूरी हैं. अब ये तो कॉल इलेक्शन कमीशन को लेने का विषय है, इस पे मेरे को कोई कमेंट भी करना उचित नहीं है. लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि जब मामले बढ़ेंगे तो बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अस्पताल पर जोर पड़ेगा. वो बिल्कुल ठीक है आपकी, उसकी जरूरत ना भी हो, मान लो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो तो भी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है. उसमें तो मेरा इतना ही कम से कम मिनिमम अपील इतना ही हो सकता है कि जो लोग इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रैलीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
धरने में, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको मेरा अपील है कि भाई आपको जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम एंड प्लेस करनी है, करिए आप, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन एक मॉडेस्ट सी अपील है कि क्या आप अपने आप को ठीक से अपने नाक मुंह को नहीं कवर करके रख सकते? हु स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट? उसको साथ साथ करते हुए अगर आप अपनी वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो शायद खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप वो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और प्रिकॉशंस भी, बेसिक प्रिकॉशंस, देखिए कोविड की एक अच्छी ब्यूटी थी इस वायरस की कि इसने कोई बहुत हाई फाई ट्रीटमेंट हमें एडवोकेट नहीं किया। एकदम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसने ईमानदारी से अपनाया, वो इस पूरे साल भर के अंदर मोटे तौर पर वो बीमार नहीं हुआ। ये सच्चाई है। वी हैव टू एनालाइज दिस एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस फैक्ट। और मैं खुद इसको मैंने महसूस किया है कि ये जो मास्क है, मैंने तो इसको उतारा नहीं भाई एक साल के अंदर, एक मिनट के लिए भी। और ये मास्क मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कवच है, इतना बड़ा ये वेपन है कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर जो है। और इसको इस्तेमाल करने में मुझे अगर एक साल में कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं बात भी लोगों से किया है, भाषण भी मैंने दिया है, सारी मीटिंग्स भी अटेंड किए हैं, सब सारे काम किए हैं। इसको सिर्फ खाने के समय उतारा है और वो भी इंश्योर किया है कि खाना मैं अकेले बैठ के खा रहा हूँ, मेरे साथ किसी डाइनिंग टेबल पे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो एवरीवन कैन डू इट, इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड। अब साबुन से हाथ धोना कौन सा मुश्किल काम है? और मैंने यार आपने फासला बना के रखा हुआ है इस समय, ये कौन सा मुश्किल काम है? यही तो करना है और तो कुछ भी नहीं करना है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन, नाउ द प्रॉब्लम इज कंपाउंडिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस एंड ऑन टू फ्रंट्स आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस। नंबर वन, बेड्स। आपने देखा अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं इन हॉस्पिटल्स वेयर इन महाराष्ट्र the number of beds are running low despite the fact that they've added more beds. In Delhi there is a similar situation. I'm sure you must be getting reports from other places also. Do you think that now it's time for central assistance to states to be able to meet the challenge? देखिए जहाँ तक सेंट्रल असिस्टेंस का सवाल है, पूरे साल हमने लगातार हर फ्रंट पे सेंट्रल असिस्टेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट टू N95 mask, PPE kits, drugs, ventilators, support systems for strengthening the capacity for oxygen, जिसमें कि खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर और ऑक्सीजन प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ भी हमने सारे जगह पे डेवलप करने के लिए, फिर किट्स, फिर लेबॉर्ट्रीज़ का एस्टैब्लिशमेंट, जितने भी तरीके से सपोर्ट करना है सब किया। और कंट्री, आई वुड से आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी ऑल अक्रॉस द कंट्री, लगभग 18-20 लाख बेड्स डेडिकेटेड टू कोविड ट्रीटमेंट, वेदर इन कोविड हॉस्पिटल्स और इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और इन कोविड केयर सेंटर्स, ये सब क्रिएट हुए हैं। अभी पिछले समय में जब ये हमारे केसेस में जो कमी आ गई थी, देखिए फरवरी में 8-9 हज़ार केसेस रह गए थे, अभी फिर 1 लाख के ऊपर आ गया 2 महीने के अंदर अंदर। तो बहुत सारी जगह पे जो आईसीयू के बेड्स हैं या दूसरे जो बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट किए गए थे, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए चेंज कर दिए गए थे। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज, इफ वी नीड मोर बेड्स, वी हैव टू रीअरेंज द होल थिंग, realign ourselves to the changing situation. So has that process begun? Obviously, you see, एक साल में हर चीज़ के लिए जो सरकारें हैं पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुकी हैं। Because when we started, we had literally started with a sort of a zero. Yeah. There was nothing dedicated to COVID. There was no COVID. There was no virus at all. This time you'll handle it with experience. We started with one lab. We are now having 2,443 laboratories in the country. We have already got some 18 to 20 lakh beds in the whole country. We over the last 1 year we have supplied so many PPE kits and N95 masks to the states that they used to say, sir please अब मत भेजिए, we don't have place to store them. यही चीज़ वेंटिलेटर्स के बारे में, अभी हम वेंटिलेटर्स उनको देने के लिए बोलते हैं, कहते हैं हमको अभी और नहीं चाहिए वेंटिलेटर। हमने सारी ऑक्सीजन कैपेसिटी उनकी स्ट्रेंथन कर दी है, सब कुछ। तो
That way, that is not the issue. Okay. I don't think hospitalization can be managed. I don't think that will ever emerge as a major issue. The issue is how to take care of the people and how to convince them that you have to please come back and resort to the same good practices, which I think that should ultimately develop as the new normal for the society, because it helps you not only for COVID, but it helps you for so many other communicable diseases also. Dr. Harshvardhan, my last few clutch of questions are going to be about a very important issue, that is vaccination. अब आपको मालूम है कि आपने खबरों में भी देखा होगा that Maharashtra is now saying that we seem to be running out of vaccines. In fact, I have this information from BMC sources. They say that Kohinoor hospital में doses खत्म हो गई कल 7:30 बजे 1.85 lakh vaccine doses remained in stock across centers in the BMC. Similar reports from Rajasthan. देखिए आप इसको समझ लीजिए, इस विषय को मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। कल सारे ये हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं 11 स्टेट्स के, इनके सामने भी मैंने बोला है कि पहली बात तो किसी भी स्टेट में कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, नंबर 1। यस, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। देखिए क्या हो रहा है कि स्टेट्स जैसे अभी उनके पास 4 दिन के लिए वैक्सीन अगर बची है तो वो कहते हैं 4 दिन के लिए वैक्सीन रह गई, खत्म हो रही है। उनको यहाँ से भी पता है और हम लोग भी लगातार बता रहे हैं। कल भी कई स्टेट्स ने जब उसमें ये इशू को रेज किया तो मैंने सामने उनकी स्टेट का चार्ट निकाल के उनको बताया कि अभी 8 अप्रैल और 12 अप्रैल के बीच में आपकी इतनी लाख वैक्सीन पाइपलाइन में, यानी देखिए जैसे जैसे वैक्सीन्स का प्रोडक्शन हो रहा है वैसे वैसे वो भारत सरकार के पास आ रही है और भारत सरकार उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहुंचा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे हॉस्पिटल्स को देना है। अब उन्होंने ये देखना है कि किस हॉस्पिटल की कितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उन्होंने देना है। हम जैसे जैसे वो यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके वैक्सीन के स्टॉक्स को रिप्लेनिश करते जा रहे हैं और उसमें उनको अपनी एबिलिटी दिखानी है। हमने तो उनको खुल के कहा है कि आप अपनी एबिलिटी इतनी आज दिखा रहे हो, कल आप इतनी दिखाओ, हम आपको इतनी वैक्सीन और दे देंगे। इसलिए you constantly replenish their stock. That is what we are doing. But you know, Dr. Harshvardhan, in an interview to NDTV, the manufacturers of Covishield, Adar Poonawalla, he says that I only have a capacity as of this moment of 2 million doses. अब हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन्स लग रही हैं अब there are 30 lakhs, about 3.4, 3.5, 4 million doses also per day. आपको नहीं लगता एक सिचुएशन आ जाएगी that the capacity to manufacture versus the requirement? देखिए हम एक तरफ ये बैलेंस भी बना के रख रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे सिस्टम के सीनियर लोग, जिम्मेदार लोग, इन सिस्टम्स में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर भी जाकर बैठे हुए हैं और हम अपने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दूसरे सिस्टम्स के साथ इनको भी और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग अपनी इनकी कैपेसिटी, एबिलिटी, इसको और फर्दर स्केल अप करने के लिए, एनहांस करने के लिए भी गवर्नमेंट साथ में सपोर्ट कर रही है। Exactly on that point, Adar Poonawalla also says that I need assistance of 3,000 crore rupees because I do not have that. I mean, he calls the situation worrying. देखिए ऐसा है कि अब मैं स्पेसिफिक्स डिटेल्स के बारे में तो ये प्रोग्राम पे कमेंट नहीं कर सकता, बट देयर इज ए group of very high profile, very experienced officials of the government of India, not only the health ministry, जो सब मिलकर जो है इन सारे इश्यूज को डेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेगवैक जो हमारा नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन वो डिस्कस करता है और वो इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ लगातार दे आर इन कांस्टेंट टच विद देम, दे आर कॉन्स्टेंटली डेलिब्रेटिंग द होल इशू विद देम। Okay, 3 short questions and I'll end the interview. Question number 1. There's a view, and today there was a big protest also in Delhi, that vaccine Maitreyi should have been avoided at a time like this. ये डोज आप हिंदुस्तानियों को पहले दे देते, उसके बाद मैत्रेयी दिखा देते। देखिए ऐसा है कि ये जो क्रिटिसिज्म है इसका कोई बेसिस नहीं है। यू हैव टू अप्रिशिएट कि इवन अदरवाइज ऑल्सो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के 60% बच्चों के लिए इंडिया वैक्सीन सप्लाई कर रहा था और हमारी जो है एक देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी एक होता है, एक साइंस का एंगल भी होता है। जो साइंस होती है, साइंस का जो आउटकम होता है वो पूरी की पूरी
मानवता के कल्याण के लिए होता है। हमारी तो सोच में भी ये है कि ये सारा विश्व हमारा एक परिवार है। दैट्स नंबर वन, दैट्स द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड दिस इज एन एस्पेक्ट विच इज इवन प्रोपेगेटेड एंड प्रमोटेड एंड एडवोकेटेड इवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज कोवैक्स की फैसिलिटी अगर वहाँ बनी है तो सारे उसमें बड़े बड़े देश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वैक्सीन, और वो फिर छोटे छोटे देशों को, दुनिया के लोगों को पहुंचाई जा रही है। हमने जो भी वैक्सीन मैत्री की है, इट इज नेवर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट आवर पीपल नीड। आज अगर 45 साल से ऊपर के किसी हिंदुस्तानी को वैक्सीन लगनी है जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स में तय है, वो लग जाएगी। तो अरे आपको क्या करना है, एक टेलीफोन पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है या वॉक इन करके आपको जाके लगवाना है। किसी को रोका जा रहा है? अगर किसी दिन 20 लाख लगती है और अगले दिन 45 लाख लगती है, तो हम तो ये नहीं कहते ना कि 45 लाख के बाद हम 46वें लाख को नहीं लगाएंगे। हमने तो सारे देश में, जब हमने पहले कहा कि सारे हेल्थ वर्कर आ जाओ, हमने तो नहीं कहा कि हेल्थ वर्कर थोड़े थोड़े करके आओ, या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को बुलाया, या फिर 60 साल से ऊपर वालों को बुलाया, या फिर 45 से 59 वाले कोमॉर्बिड्स को बुलाया। But now sir, with time running out, there is also a demand from various states to open up this vaccination for all. देखिए, and yesterday we saw a statement that those who need it should get it and not those who want it. नहीं, Don't you think everybody wants it? You see, it is being the priority groups have been decided based on the backing of science, based on backing of recommendations of international groups, WHO, and whatever is being done all over the world। सारी चीज़ों के बीच में से बैलेंस बना के, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी या हमारी जो कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ों के बीच में से बैलेंस बना के ये किया जा रहा है। ये WHO भी कहता है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, they have to be given the vaccine first. It is not to be given to everybody across you see all sections. Okay. तो ये कोई आर्बिट्रेरी फैसला नहीं है कि अभी इसको लगाएंगे उसके बाद उसको लगाएंगे। ये सब कुछ बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से, वेल प्लान्ड ढंग से इसको किया जा रहा है, और जब उसके आगे अगला स्टेप लेने का समय आएगा या जरूरत होगी तो वो भी लिया जाएगा। Dr. Harshvardhan, even if we go by present estimates, it seems that we are already behind schedule as far as vaccinating people are concerned to meet our targets. देखिए, सितंबर में जाके टारगेट खत्म होगा। संकेत जी, इसमें कोई टारगेट नहीं है, और कोई ये डायनामिक प्रोसेस है एकदम जो है, और ये जैसे वायरस का बिहेवियर डायनामिक है, ये प्रोसेस भी थोड़ा पूरी तरीके से डायनामिक है। अभी आप देख रहे हैं ना, हमने तो कितने बड़े एक अब ये 50 साल से ऊपर के, 60 साल से ऊपर के 80% लोग जो हैं, उनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो रही थी। दैट इज व्हाई दे वर द फर्स्ट वंस टू बी प्रायोरिटाइज्ड। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर सबसे ज्यादा एक्सपोज थे, मोस्ट एट रिस्क थे, उनको प्रायोरिटाइज किया गया। लेटेस्ट म्यूटेशन सर, इट इज अफेक्टिंग मोर पीपल बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40। देखिए, अभी कैजुअल्टीज आर आल्सो वेरी हाई इन दिस। अभी इस प्रकार का जो आपने अभी स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया, ऐसा कोई वेल डिफाइंड और वेल इन्फर्ड कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। अभी म्यूटेशन के बारे में तो आप जानें, 10-12 हज़ार के करीब जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, उसमें 900,000 जो भी म्यूटेशंस मिले हैं उसको स्टडी किया जा रहा है। लेकिन म्यूटेशंस के कारण किसी भी प्रकार का कोई सर्ज हो रहा हो, दैट्स नंबर वन, नॉट येट एस्टैब्लिश्ड, पहली बात। और दूसरी बात, म्यूटेशंस के कारण ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, ये भी एस्टैब्लिश नहीं। आप अगर देखिए तो 1 लाख से ऊपर दोबारा से केसेस हो गए, और अभी हमारी मोर्टेलिटी रेट कम होता जा रहा है। अभी हमारा मोर्टेलिटी रेट 1.30 के करीब है, और अभी आप 2 महीने पहले का देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये, यानी कि हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन ये 0.1 जो है ये, और mortality rate is also increasing, and I'm talking absolute numbers from what I've seen in the government website, 500, 550, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। वो कंपैरेटिव है ना, कंपैरेटिव है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो केसेस हो रहे हैं उसकी वजह से वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग। ये तो चिंता का विषय है ही है। सर्ज भी हो रहा है, केसेस भी हो रहे हैं। फरवरी के महीने में जो है वो अगर 9-10 हज़ार केसेस थे तो आज 1 लाख के आसपास आ गए हैं, तो ये सबके लिए चिंता का बात है। लेकिन चिंता को दूर करने के लिए सबको मिलके कुछ ज़्यादा नहीं करना है। रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं बार बार देश के लोगों को कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ मास्क पहन लो, सिर्फ सावधानी बरत लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बड़े बड़े शादियां आज आयोजित करें।
सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उनको वायलेट करें, ये सब कुछ आपके स्वास्थ्य की, आपके प्राण की रक्षा के लिए किया गया है। उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को कोविड से बचा पाएंगे और दूसरे लोगों को भी कोविड देने की स्थिति निर्माण नहीं होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, माय फाइनल क्वेश्चन, the health ministry, as we discussed also in its briefing yesterday, said that vaccine will be for those who need it and not for those who want it. आपने उस पे अपना स्पष्टीकरण दिया. But the US example was cited. You cited the WHO also. In the US, as you're aware, now they've decided to advance the date of vaccine for all under the Biden administration. Do you feel that we should also be doing the same maybe in the near future of providing vaccine for all? Because see, the virus is not differentiating on the basis of age. So why should the vaccine? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये सारा कुछ जो सारी ओवरऑल पिक्चर है ना, ये डायनामिक पिक्चर है। और आपने देखा कि देखते ही देखते समय के साथ जो चीज़ जनवरी में थी वो फरवरी में नहीं थी, जो फरवरी में सिचुएशन थी वो मार्च में आ गई, जो मार्च में थी वो अप्रैल में फिर चेंज हो गया। तो ये जैसे जैसे डायनामिक्स चेंज होगी, एक्सपर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। जो हमारी एक्सपर्ट ग्रुप है उसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें वैज्ञानिक लोग भी हैं, उसमें सारे स्टेट्स के भी रीजनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है। ऑल टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर एंड व्हेन दे डिसाइड दे अप्लाई देयर माइंड, दे टेक गाइडेंस फ्रॉम एवरीबॉडी एंड सारी चीज़ों को बहुत गहराई से सबसे बड़ी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर इतनी डिटेल में हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, पिछले 1.25 साल से गाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बारीक चीज को भी वो देखते हैं, समझते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि कोवैक्सीन के बारे में बड़ी चिंता है कि उस तरीके से वी स्टिल डोंट नो वेदर देयर facilities have been ramped up or not, whether that vaccine is readily available like a Covishield, and what about newer vaccine candidates? देखिए, give us some sort of a timeline. देखिए, ऐसा है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में जो कोविशील्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो पहले से ही ज़्यादा थी, वो कई गुना ज़्यादा थी कोवैक्सीन के मुकाबले। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार दोनों की फैसिलिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रैंप अप करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए सब प्रकार से होमवर्क कर रही है। और फाइनेंशियल सपोर्ट whatever is needed वो सब डिस्कशंस का पार्ट है। I would not like to get into the nitty gritty of that because that is being deliberated at a different level by different people who are experts and who have been put on the job of doing that. और जो अभी इन द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में, ऐसी भी लगभग 5-6 वैक्सीन हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में है। कुछ एक बहुत ही एडवांस्ड फेजेस के अंदर है, कुछ एक आध ने अप्लाई भी कर दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो ये भी समय के साथ जो है ये भी फील्ड के अंदर डेवलपमेंट, लेकिन किसी में भी हम जो प्रोसेसेस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। उनको अप्रूवल्स देने के लिए जो कुछ उनके लिए उसके पहले ट्रायल होना ज़रूरी है, वो सारे प्रोसेसेस को जब स्क्रूटनाइज करने के बाद भी, उन स्क्रूटनी से गुजरने के बाद ही वो जनता के लिए उपलब्ध होंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, as we end this interview, I just want to know from you, what is your calculation? You are saying you are appealing to the people कि भाई मास्क पहन लो, COVID appropriate behavior. I'm sure that is a message for even the politicians and all those attending political rallies. But what is your calculation, the government's calculation as to when this peak will go? देखिए, मैं honestly speaking मैं तो एकदम इटर्नल ऑप्टिमिस्ट पर्सन हूँ। By the way, were you prepared for this? और नहीं, ये जब थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर अगर आप मेरे जनवरी फरवरी के आसपास के भी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो मैं तब भी यही बात को एम्फेसाइज करता था। जब मुझे लगता था कि लोग थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं तो मुझे ये चिंता तब भी होती थी। अब ये चिंता जो है इतने ज़्यादा तेज़ी से इतने ज़्यादा केसेस में परिवर्तित होगी, इसको तो कोई शायद, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट ने जो हमें प्रोजेक्शन करके दिया था फरवरी तक का, वो बिल्कुल ठीक निकला। अब ये जो सर्ज हुआ है ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, ये सोसाइटल जो ये रीज़न है, जो ये लैक्सिटी हुई है, कॉम्प्लेसेंसी जो इसमें आई है, इसकी वजह से हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको सब लोग मिलके ठीक प्रकार से, आप लोग भी मीडिया के लोग ठीक प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करेंगे और लोग अगर अपने जो व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, और व्यवहार को कुछ परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है विशेष रूप से,
तो जिस तरह से तेजी से ऊपर गए हैं केसेस, उसी तरह से तेजी से वापस भी आ जाएंगे। इतनी कोई इसमें एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारी सब कुछ हमारे लुट गया है, ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें चिंतित भी रहना ज़रूरी है, कंसर्न भी रहना ज़रूरी है, और जो कर्म है उसके लिए वो भी करना ज़रूरी है। तो कर्म करेंगे तो फल निश्चित रूप से मिलेगा, और कर्म में हम चाहते हैं कि सब लोगों का, आपका कर्म को लोगों के द्वारा कराने में आप सबका सहयोग मिले। डॉक्टर हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू इंडिया। वेलकम। शुक्रिया आपका। थैंक यू, वेलकम।